So, my dear friends, I think I'm going to start. Log judte jayenge. Let me just welcome all those people who are already online. A very, very warm welcome to each one of you to the session of Sharp Conversation number 11. And I'm extremely happy to bring to you another very, very influential personality to inspire us with her story. Well, music is life and music is powerful. Music is energizing. I want to create a synergy here between music and life, something that I truly believe in. As a life coach, we make you people experience everlasting transformation, help you to overcome your emotional and mental barriers, get you to come out of your fears and anxieties, from your self limiting beliefs, and help you to take charge of your life. And with this comes appropriate music, which is huge. It is inspirational, it is motivational, and it is extremely comforting because where words finish, music starts to spell its magic. Ustad Bismillah Khan once said, "Music lets me forget bad experiences. You cannot have ragas and regrets in your mind together." Isn't that beautiful? It says it all. Friends, I'm a big consumer of music. Music is therapeutic and the universal language of mankind. Good music connects people, it speaks to you in your solitude and inspires you to change. It gives you nourishment for your soul and it has the spirit of bringing peace and abolishing strife. My guest for today on Sharp Conversation is all about music. Her music touches your soul, your spirit, and emotions in unimaginable proportions. You have to simply listen and experience her. Popularly known as the Queen of Ghazals, जिन्होंने शायरी और गजल गायकी को जीवित रखा है. Globally renowned, hugely loved by the enthusiasts of ghazal gaiki, cutting across all barriers, बेहद नामवर, बहुत ही हसीन, खूबसूरत दिल, खनखनाती और रेशमी आवाज की मलिका राधिका चोपड़ा. I can go on and on about her because I'm a huge friend of hers. And besides being a friend, I'm even a bigger fan of hers. So I'm going to मेरी बहुत ही अजीज मशहूर गायिका, the very lovable Radhika Chopra. So I'm going to just get her online, friends, and there she is. I hope I can get her because some sort of technical situations are happening. I just hope we are able to get her online. Yes, Radhika, how are you, my dear? Can you see me? Yes, of course. Namaskar, Adab. How are you? I hope you How can are see you? me. Namaskar and adab to you, my dear. Am I audible? I can see you and I can hear you. All right. Yes, Okay. you're audible. Thank you so much. Thank you थोड़ा for सा that. थोड़ा सा कहीं हाँ थोड़ा सा कहीं go लैग है. on, go on. Yes. नहीं, मैं थोड़ा सा बस कहीं लैग है. thank you कहना चाह रही थी. Thanks a ton. Thank you very much for having me over. And thank you for that very elaborate superlative introduction. I know you always go overboard whenever you speak about me. I think you're biased somewhere. And so thank you once again. बड़ी नामी गिरामी हस्तियों के साथ आप जुड़ती हैं इस कॉन्वर्सेशन में और आपने मुझे इस काबिल समझा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ज़रा नवाजी. Radhika, and you know that everything that I speak about you comes from my heart, and you know exactly how I feel about you.
I always say कि तुम एक अजीज दोस्त ही नहीं, you are like a sister from another mother. Thank you. And शुरुआत हुई जब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन बनी, because that's how I got to know about you, और फिर दोस्ती साथ साथ में बढ़ती चली गई. So everything that comes to from me to to you or to the people in general comes straight from my heart. So warm Thank you. welcome. बेहद खुशी है Thank you. that Let me tell you that this admiration is mutual. You are inspirational too. You know, your journey and your struggle, your life, your ups and downs, your courage. I mean, it's all, you know, I get to learn so much from you. So it's mutual. Thank you so much. And I think this is what life is all about, because we give so much strength to each other. We give Absolutely. inspiration to each other. You know? Yeah. जी, So शुरुआत करने से पहले I'm going to give a quick introduction about you to people and let them know a little bit more about you. बहुत ज़्यादा तारीफ ना कीजिएगा क्योंकि मैं उसके काबिल अपने आप को समझती नहीं. नहीं, आपको सिर्फ सुनना है, बाकी मेरा काम है वो आपको सिर्फ एब्जॉर्ब करना ही है. जो मैं कहूंगी वो आज आपको एब्जॉर्ब ही करना है, जैसे आपको करना पड़ता है. जो हुक्म आपका. Friends, Radhika Chopra belongs to Jammu, and her formative years were in an environment where music and cultural initiations were a part of her upbringing, with extremely supportive and illustrious parents who recognized Radhika's talent from a very young age and put her into classical music from the age of 8. She learned classical music under the aegis of Pandit J.R. Sharma in Jammu, and then came to Delhi to learn music under the renowned ghazal gaika Srimati Shanti Hiranandji, who was the erstwhile disciple of Malikai Ghazal Begum Akhtar, जिनकी आज 106वीं जन्मदिन भी है. And this is also one of the reasons that we fixed up for the session on this lovely day. बहुत खूबसूरत दिन चुना आपने, बहुत खूबसूरत. So I'm so happy to have you, and I'm so glad that you were free. Despite your busy schedule in this pandemic, you were able to give me a go-ahead today, finally, for this date. So friends, once Radhika was in Delhi, she trained under Shanti ji, and she also topped MA and then went on to complete her PhD in Hindustani music. Radhika Chopra has not only performed extensively in India, but also internationally all over the world. With her innumerable shows, she has reached her fans across the globe year after year. And Radhika ki आवाज का जादू, नायाब अंदाज और अदायगी has held her audiences captive and mesmerized them seamlessly. Her accomplishments have been recognized by the highest authorities in the field of music. She is impaneled with ICCR to perform and promote ghazal gaiki and other semi-classical forms of music. She was commissioned by the Indian Ministry of Culture to commemorate legendary figures like Ghalib, Faiz, KL Sehgal, Begum Akhtar, and so many more. She performs regularly for very prestigious festivals like Jahan-e-Khusro, Jashn-e-Rekhta, Durgana Sangeet Sammelan in Amritsar, MTV Music Summit in Jaipur, Ghazals festivals which are organized by Sahitya Kala Parishad and Delhi government, festivals by the Urdu Academy, Ghazal Bahar in Mumbai, and many such prestigious festivals. She has been honored with many, many awards and recognitions, and one of them being the prestigious award by the Urdu Academy. So Radhika, आज बहुत ही एक मुबारक दिन है, जैसे हम लोगों ने अभी बात करी. जी बिल्कुल. मलिकाए गजल साहिबा का जन्मदिन, Begum Akhtar Sahiba ka Janamdin. So it is only, befitting for you to start with something of Begum Akhtar Sahiba. You have been most earnestly carrying forward her legacy of traditional ghazal gaiki in your own style. I'm just trying, It's not so easy to carry forward her gaiki, honestly speaking.
हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं ना दीपाली, वो इतनी बड़ी हस्ती कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस काबिल भी नहीं कि उनका नाम अपनी जुबान से ले सकूं। उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं, और उनकी तरह एक सुर लगाने के लिए ये जन्म मेरे लिए काफी नहीं, अगला जन्म लेना पड़ेगा। Her amazing, amazing, unbelievable, unfathomable journey from kotha to concert. It's all thanks to her. अगर वो कोठे से इस गायकी को, इस जॉनर को उठाकर कॉन्सर्ट लेवल तक ना लाती, तो आज मेरे जैसी कई इस जॉनर को कभी अपना ही नहीं पाती। कितनी बड़ी बात है कि कोठे से एक जर्नी शुरू हुई, और आगाज देखिए कहां से हुआ और अंजाम कहां हुआ, पद्मश्री पद्म भूषण पर। कितनी बड़ी बात है। और बड़े बड़े क्लासिकल म्यूजिक के दिग्गज, चाहे वो पंडित जसराज हों या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हों, गिरिजा देवी हों, सब उनके कायल थे, सब उनके मुरीद थे, सब उनका गाना सुनना चाहते थे। बड़े बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में जहां सिर्फ शास्त्रीय संगीत होता है, जैसे दुर्गियाना फेस्टिवल या हरिवल्लभ या और भी कई फेस्टिवल, वहां उन्हें गजल गाने के लिए बुलाया जाता था और ठुमरी दादरा के लिए बुलाया जाता था। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी हस्ती थी वो। और ऐसे लोग, ऐसी शख्सियत जो होती हैं, वो 100 साल में एक ही बार आती है और एक ही होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनडिस्प्यूटेड मल्लिका गजल, क्वीन ऑफ गजल। कोई उनके जैसा न था, न है, न होगा। ये जितनी बड़ी हस्तियां होती है ना, ये एक ही होती हैं अपने आप में, नायाब हस्तियां, और ये फिर 100 साल में एक ही मर्तबा होती हैं। मेरी छोटी सी कोशिश है कि उनकी जो जर्नी है उसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, लोगों को मैं वाकिफ कराती हूँ उनकी जर्नी से। बहुत लोग जानते हैं, बहुत हैं जो नहीं भी जानते। और उनके जो दो अलग स्टाइल हो गए जब वो अख्तरी बाई थी। शी स्टार्टेड एज अख्तरी बाई फैजाबादी। यस यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वहां से निकाह करने के बाद बैरिस्टर अब्बासी के साथ वो बेगम अख्तर हुई। लेकिन बेगम अख्तर होते ही उन्होंने गाना नहीं शुरू किया, गाना बंद हो गया था 10 साल के लिए, 10-12 साल के लिए। ये तो फिर जब वो बहुत बीमार हो गई तो डॉक्टरों के कहने पर उन्हें इजाजत दी गई गाने की, फिर बेगम अख्तर बनकर दुनिया के सामने आई। तो दो जो स्टाइल थे वो एकदम मुख्तलिफ हो गए, एकदम अलग हो गए। वो छोटा छोटा एक नमूना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। इरशाद, इरशाद। तो देखिए, जब मैं जरा तानपुरे की वो ले रही हूँ हेल्प, शायद आपको सुनाई ना दे, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए है। जी। मैं एक सेकेंड आऊंगी। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि वी कांट सी। वैंडी, कैन यू प्लीज रीलॉग, बिकॉज मुझे कहीं और से नहीं आ रहा। सो जस्ट लॉग इन अगेन प्लीज। बॉबी साहब, आप भी दोबारा अगर लॉग इन करें तो आपको शायद देखने को मिलेगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद एनीबडी एल्स, प्लीज लेट अस नो। थैंक यू। यस, इरशाद राधिका, सॉरी मुझे रोकना पड़ा, सॉरी। कोई बात नहीं। तो देखो क्या है कि वो कोठे का गाना था ना, तो वो एक अलग किस्म का गाना था, मुख्तलिफ किस्म का गाना था। देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ सेंसुअलिटी इन दैट सिंगिंग। तो गजलें भी बहुत एकदम चंचल और बहुत चलती हुई उस किस्म की, और दादरे, ठुमरी और कई चीजें जो कोठे की चीजें थी। वैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। ये अख्तरी बाई का गाना है ना जी। हमार कहे मानो राजा जी, हमार कहे मानो, हमार कहे मानो, ओ राजा जी, हमार कहे मानो राजा जी, ओ राजा जी, सौतन के लंबे लंबे बाल, ओ राजा जी, राजा जी, हाँ, ओ राजा जी, ओ राजा जी, राजा जी, ओ राजा जी, सौतन के लंबे लंबे बाल, उलझ मत जाना, ओ राजा जी, हमार कही मान, राजा जी।
वाह वाह वाह। तरह का गाना था। और फिर जब बेगम अख्तर बनकर आई तो दूर है मंजिल, राहें मुश्किल, आलम है तन्हाई का, आलम है तन्हाई का, आज मुझे एहसास हुआ है अपनी शिकस्ता पाई का। शिकस्ता पाई कहते हैं थके हुए पैर, टायर्ड फीट। जी अपनी शिकस्ता पाई का। ये हुई, फिर कितनी गजलें हैं, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वो है यान वादा, वो है यान वादा, निभाता तुम्हें याद हो ये ना याद हो, जो हम में तुम में। या फिर ए मोहब्बत तेरे क्या बात। अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, ए मोहब्बत। मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन। यहाँ पर तो लोग वाह वाह कर, आवाज में भी फर्क आ गया था और स्टाइल जो है वो बिल्कुल बदल गया था। राधिका यहाँ पर लोग वाह वाह करते थक नहीं रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग इट थॉरली। बहुत ही खूबसूरती से लोग आपकी यू नो दे जस्ट लिसन टू यू एंड showering you with so much of so many compliments. Vandana Videra, Pradeep Badil, Nadira Khan, Adab Radhika ji, good to see you and listen to your spellbounding voice. Deserve all praises and admiration. उसका फजलो करम है, मेरा अपना कुछ नहीं है, उसी का दिया हुआ है, उसी का दिया हुआ आपके सामने पेश कर रही हूँ। हमेशा एक शेर कहती हूँ कि मेरा कमाल फन तो बस इतना है जिगर, जिगर मुरादाबादी का शेर है जी। कि ये जो फन है, इसका जो कमाल है, ये मेरा नहीं है। मेरा कमाल फन तो बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गया, मैं जमाने पे छा गया। तो बस इसका फजलो करम है। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माँ सरस्वती का भरपूर आशीर्वाद है राधिका तुम पर। एंड ये जो आप अपनी तरफ से जो अपनी गायकी के थ्रू अपनी तरह से कंट्रीब्यूशन कर रही हो, उसका अंदाजा ही नहीं है तुम्हें, दैट हाउ मच ऑफ ब्यूटी यू आर एडिंग टू पीपल्स लाइफ थ्रू योर म्यूजिक। बहुत शुक्रिया, तो थैंक यू सो मच। आपने कहा कि अंदाजा नहीं है, मैं चाहती भी नहीं दीपाली के मुझे कभी अंदाजा हो। सच्चाई ये है, क्योंकि मैं बहुत जमीन से जुड़ी हुई हूँ, जमीन से ही जुड़े रहना चाहती हूँ, हवाओं में बिल्कुल उड़ना नहीं चाहती। वरना फिर वो एक शेर याद आता है कि मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, कि मैं जमीन के रिश्तों से कट गया यारो। तो मैं जमीन के रिश्तों से कभी कटना नहीं चाहती, इसलिए मैं अंदाजा लगाना भी नहीं चाहती। बस आप लोगों की मोहब्बत, प्यार, दुआएं मिलती रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। I'm very very aware of your humility. मैं इस बात से बेहद वाकिफ हूँ कि how humble and how grounded you are. Friends, you have to know Radhika to understand that how beautifully she has been able to preserve her humility and a heart which is of gold. So Radhika, अब चर्चा शुरू करते हैं। थोड़े बहुत जो मेरे पास
सवाल हैं वो मैं पूछूंगी, सो दैट वी गेट टू नो यू बेटर, द ऑडियंसेस गेट टू नो यू बेटर। यहाँ पर बॉबी ब्राउन है, वो कह रहे हैं कि हमारी फैमिली में बेगम अख्तर साहिबा हमारी फैमिली की बहुत अच्छी दोस्त थी, उनका आना जाना रहता था और बहुत अच्छे उनको किस्से, मजेदार किस्से याद हैं। मनप्रीत, यही कह सकती हूँ, हमारी इतनी खुशनसीबी नहीं थी कि जिंदगी में कभी उन्हें देख पाते। जी, so she passed away, so मैं कभी उन्हें देख नहीं पाई, लेकिन उनके बारे में इतना जाना है, इतना पढ़ा है और शांति जी से इतना सुना है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उन्हें बहुत करीब से जानती हूँ, बहुत करीब से जानती हूँ। बहुत सुंदर। अनम, अंजू जामवाल, मनप्रीत कौर, बॉबी, अरुण, प्रकाश, सुदेशना डैश, प्रदीप, वंदना, वशिष्ठ, पुष्प मेहरा, बहुत से लोग जुड़ गए हैं साथ में, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। सो नाउ आई वांट टू नो राधिका, टू बिगिन विद के जम्मू में फ्रॉम द एज ऑफ 8 माँ बाप की बहुत इंकरेजमेंट और सपोर्ट, एक सपोर्टिव सिस्टम के साथ आपको म्यूजिक में डाल दिया गया। उस समय माँ बाप का बहुत जरूरी होता है कि वो एक सपोर्ट सिस्टम बनाए रखें, क्योंकि बच्चे थोड़े डगमगाने लगते हैं, एक रेजिमेंटेड रूटीन से तंग आ जाते हैं, अपने आप को पीछे खींचते हैं और उसको उनको अच्छा नहीं लगता किसी भी तरीके की एक डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करना। जब सारे बच्चे खेल रहे होते थे तो राधिका रियाज कर रही होती थी, कैसा रहा वो बचपन? बहुत ही खुशकिस्मत रही इस मामले में दीपाली, कि बहुत छोटे शहर में, स्मॉल सिटी एंड अ वेरी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग, so you can imagine, मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग में और कुछ हो ना हो, what I had in abundance was happiness and extremely lucky to have very musical parents. वो लोग संगीत, मतलब किस कदर संगीत को चाहते थे कि आप इमेजिन नहीं कर सकती हैं। और मैं कई बार पहले भी कह चुकी हूँ, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कि एक दौर ऐसा भी आया था जब वो दोनों भी शायद मुंबई गए थे अपनी किस्मत आजमाने, इतना अच्छा गाते थे, हालांकि सीखा नहीं था, तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन वो मुश्किल दौर थे, डिफिकल्ट टाइम, प्लस दे हैड देयर ओन लिमिटेशंस एंड देयर ओन प्रॉब्लम्स और व्हाटएवर ओन सर्कमस्टांसेस, तो वो वहाँ बहुत ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाए। नेवरदीलेस, जब मुझ में उन्होंने ये पोटेंशियल देखा तो प्रोबेबली दे वांटेड टू लिव देयर ड्रीम थ्रू मी, तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी उन्होंने स्कूल में डाल दिया, म्यूजिक स्कूल में। और सच्चाई ये है कि शुरू में तो मेरा भी बहुत मन नहीं लगता था दीपाली, क्योंकि मुझे लगता था, बहुत बंदिश लगती थी, बहुत बंधन लगता था, और वो क्लासिकल म्यूजिक में उतना दिल नहीं लगता था। धीरे धीरे जब मैंने एक दो कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और मुझे प्राइजेस मिलने लगे और अपलॉज एंड एक्कलेड्स, और मुझे ये लगा कि इसकी वजह से मैं स्कूल में बहुत पॉपुलर होने लगी। The principal was very fond of me, the teachers were extremely fond of me, और घर में भी सब रिलेटिव्स, अड़ोसी पड़ोसी, सब की बहुत अटेंशन मिलने लगी, बहुत प्यार मिलने लगा। तब मुझे लगा कि नहीं, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो मुझे और बच्चों से बिल्कुल अलग बना रही है, एक अलग पहचान दे रही है। So probably that's when I started learning very very seriously. फिर भी छोटा शहर, छोटी जगह, कम अपॉर्चुनिटीज थी, तो बाहर निकलना जरूरी था बहुत, to spread my wings and to achieve much more than I could have if I was staying in Jammu only. बहुत प्यारा शहर है, बहुत छोटा शहर है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली कम हैं as compared to a bigger city. So फिर दिल्ली आना हुआ। दिल्ली में आपने शांति हीरानंद जी के साथ अपनी तालीम शुरू करी, साथ में? हाँ, शांति जी से तालीम शुरू नहीं की। दिल्ली जब मैं आई तो इनफैक्ट मैं आई तो थी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सीखने, और मैं आई वांटेड टू जॉइन भारतीय कला केंद्र, और वहाँ एक गुरु हुआ करते थे पंडित अमरनाथ जी, जो अब नहीं है। हाँ, मैं पंडित अमरनाथ जी से सीखना चाहती थी, उनकी बहुत बड़ी फैन थी, मैंने उनका गाना सुना था, लेकिन वो वक्त, वो दौर ऐसे थे
कि जब पेरेंट्स भी लोगों की बातों में आकर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते थे, तो शायद किसी ने मेरे पेरेंट्स से कहा कि अगर ये भारतीय कला केंद्र में सीखेंगी तो इनके पास डिग्री तो होगी नहीं, तो शी मस्ट हैव अ डिग्री टू सस्टेन इन लाइफ, यू नो, क्योंकि हो सकता है जिंदगी में गाना बजाना तो नाकाम आए या सीखना पता नहीं आगे कितना बढ़ पाएंगी, कम से कम एक डिग्री होगी तो नौकरी तो कर पाएंगी। तो ये सुनकर मेरे पेरेंट्स ने इरादा बदल दिया और मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करा दी, जो कि मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं पंडित जी से ही सीखना चाहती थी और भारतीय कला केंद्र ज्वाइन करके वहीं सीखना चाहती थी। लेकिन डेस्टिनी में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, तो जो लिखा था वही हुआ और इस तरह मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। और बहुत मुश्किल हुई शुरू में, क्योंकि छोटे शहर से आई थी, यहाँ के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में मेरा गाना मुझे लगता था कि कुछ भी नहीं है, क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रही हूँ। और फिर ये हुआ कि एमए हो गई, टॉप किया, आई स्टेड बैक फॉर एमफिल। एमफिल के दौरान जो मेरा डेजिटेशन था, वो चूंकि मेरा टॉपिक एमफिल और पीएचडी का ठुमरी दादरा पे था, सेमी क्लासिकल फॉर्म्स पे, उस दौरान मेरी मुलाकात शांति जी से हुई। आई हैड actually gone to interview her for my dissertation, for my thesis. और वहाँ बस जब मैं उनकी क्लास में गई और मैंने उनका गाना सुना, वो सिखा रही थी स्टूडेंट्स को, I was so inspired कि बस मुझे लगा कि मुझे तो इनसे गाना सीखना है। और वहाँ फिर मैंने उनको दरख्वास्त की, उन्होंने थोड़ा सा मेरा गाना सुना, बहुत खुश हुई, कहने लगी तुम तो बहुत अच्छा गाती हो ऑलरेडी, लेकिन जरूर आओ। वहां से फिर मेरी जर्नी जो है शांति जी के साथ शुरू हुई, लेकिन वो जितनी जल्दी शुरू हुई थी उतनी जल्दी खत्म हो गई, बिकॉज आई गॉट मैरिड आफ्टर दैट। तो शादी के बाद फिर देन अगेन देयर वाज अ गैप, देयर वाज अ सबैटिकल। मैं जी हाँ यहाँ जानना चाहूंगी राधिका, अच्छा साथ अपने शमी नारंग जुड़ गए हैं साथ में, एंड ही सेइंग आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई नो यू, लोड्स ऑफ लव शमी। सोनिया मेहता कहते हैं सो लवली टू सी यू एंड लिसन टू यू राधिका। संगीता बहल इज गिविंग यू मेनी हग्स। Sean Saxena is saying namaskar to you. Now, Radhika, दिल्ली आके पढ़ाई के साथ साथ तालीम शुरू हुई, उसके साथ साथ आपके बहुत अजीज यहाँ दोस्त बने, चाहे वो मुकुल वर्मा थे, चाहे विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज, सोनू निगम, इतने सारे जो आपके सारे जसपिंदर नरूला। तो उस समय पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में। हाँ, सो आप लोग सब इकट्ठे रहते थे, तो उस समय स्ट्रगल के साथ साथ आप लोगों ने किस तरह से एक दूसरे के साथ, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक वुड यू पीपल कंपोज एंड क्रिएट, एंड आप लोगों हम लोग दीवाने थे, हम लोग दीवाने थे, बिल्कुल हम पागल किस्म के लोग थे, हम इस दुनिया के लोग ही नहीं थे, बिल्कुल अलग किस्म के लोग थे। और बस रात रात भर हम लोग बैठा करते थे और गाना गाया करते थे, क्योंकि सभी को जुनून था ना बिल्कुल म्यूजिक का, सभी को इतना शौक था। और उस दौर में मुझे याद है कि विनोद दुआ भी साथ जुड़ जाते थे। विनोद जी की नई नई शादी हुई थी तो चिन्ना भी आती थी, वो भी गाने के बड़े शौकीन दोनों। और एक हमारी बहुत ही अजीज दोस्त है साधना श्रीवास्तव, साधना उस दौर की स्टार थी। तो वो उसका एक बड़ा सा बंगला हुआ करता था यूनिवर्सिटी के पास, और हम बस रात भर उस बंगले में बैठ के और खूब गाना बजाना किया करते थे और बहुत कंपोज करते थे। विशाल बहुत कंपोज करते थे और हमें सिखाते थे अपनी कॉम्पोजिशंस। और चूंकि पैसे नहीं होते थे दीपाली, तो पैसा कमाने के लिए हम लोग जिंगल्स गाते थे, बहुत जिंगल्स विशाल कंपोज करते थे और मैं गाती थी, मुकुल गाते थे। एक हमारे दोस्त थे देवा सेन गुप्ता, वो अब हमारे बीच नहीं रहे, देवा गाते थे। और हम लोग सब बस दिन भर हमारा यही काम था, दूरदर्शन के चक्कर लगाते थे, वहां प्रोग्राम करते थे, रेडियो में कुछ कर लेते थे। और यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, 100 रुपए का इनाम मिलता था, फर्स्ट प्राइज 100 रुपीज। तो वो हमें मालूम था कि वो हम ही में से किसी का है, तो चाहे वो मुकुल को मिले या मुझे मिले या किसी को भी मिले, तो वो 100 रुपए हमारे लिए बहुत मायने रखते थे। फिर उस दिन पार्टी हुआ करती थी। क्या बात, बड़ा बहुत अच्छा दौर था, बहुत अच्छा वक्त था, बहुत अच्छा टाइम देखा। बहुत स्ट्रगल थी, पैसे को लेकर बहुत स्ट्रगल थी, लेकिन उस जमाने में जरूरतें भी बहुत कम थी दीपाली। उस 100 रुपए में हम लोग सब मतलब इतने खुश हो जाया करते थे
कि अगले एक हफ्ते की पार्टी हमारी हो जाया करती थी बड़े आराम से। क्या तो बात है। और फिर हमने छोटे-छोटे स्टेज शोज़ भी शुरू कर दिए थे। कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, या कभी जेएनयू चले गए गाने, कभी रामजस कॉलेज में फेस्टिवल है वहाँ गा रहे हैं। तो कुछ हज़ार रुपए मिल जाते थे, तो बस वो तो हमारे लिए ऐसा लगता था कि जैसे खजाना हाथ लग जाता। आई कैन इमेजिन कि उस समय क्या माहौल होता होगा जब तुम सब मिलके इकट्ठे गाना बजाना कॉम्पोजिशंस अपने अपने ही उसमें रहते होंगे टू टू हैव सच अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम टुगेदर, बीइंग टुगेदर, कंपोजिंग म्यूजिक टुगेदर। उसका एक अपना ही मजा रहा होगा। बट राधिका, tell me something that because of your sound training in classical music, तो मौसीकी के हर रंग में इतनी खूबसूरती से गा लेती हो, चाहे वो गजल है, दादरा है, ठुमरी है, सूफी है, गीत है या फोक है। कब तुमने अपनी आवाज को उस तरह से समझा और पहचाना और तुम्हें ये लगने लगा कि मुझे गजल गायकी की तरफ अपना रुझान बढ़ाना है और तुम उस तरफ चल पड़ी, वो कब हुआ? वर्सेटैलिटी तो ऊपर वाले की तरफ से आती है दीपाली, जैसे वो आवाज देता है वैसे वर्सेटैलिटी भी वही देता है। यू आर आइदर वर्सेटाइल और यू आर नॉट। तो थैंकफुली मैं वर्सेटाइल हूँ, इसलिए बहुत सी चीजों को बहुत अच्छे से निभा पाती हूँ। गजल से शुरू से मोहब्बत थी, क्योंकि एक तो बचपन में क्योंकि मेरे फादर को बहुत शौक था और वो गालिब की पोइट्री बहुत रिसाइट किया करते थे, हम लोगों को भी सुनाया करते थे। हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जहन में चीजें रह गई और वो सुना करते थे बहुत बेगम अख्तर को और के एल सहगल साहब को। तो और बहुत छोटी थी, करीब 10 या 11 साल की थी, तो एक बहुत बड़ा गजल का कंपटीशन मैंने जीत लिया था। कहीं वहां से भी मुझे लगता है कि दैट वाज अ स्टेपिंग स्टोन, वेरी वेरी एनकरेजिंग फॉर मी, कि मैं गजल, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी वो गजल, कतील शिफाई की गजल थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे गुरुजी ने मुझे रटा दी, सिखा दी और मैंने वहां जाके गा दी और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वो था। फिर उसके बाद अभी मैं करीब जब 15-16 साल की थी, तो जगजीत सिंह साहब को सुन लिया, उनकी आवाज सुन ली और मैं दीवानी हो गई। उनकी आवाज से ऐसी मोहब्बत हुई कि बस वो मोहब्बत आज तक जो है वो आप जानती हैं कि कायम है। उर्दू से मुझे बेहद लगाव था। उर्दू चूंकि जम्मू कश्मीर में रहने की वजह से, वहाँ की फ़ज़ाओं में उर्दू होने की वजह से, उर्दू वाज़ नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी। सो उर्दू मेरी हमेशा से ठीक-ठाक थी, अच्छी थी। मुझे लगता था कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, जब तक कि मैंने इस फ़ील्ड में सीरियसली कदम नहीं रखा। जब मैंने कदम रखा तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है, वो दरअसल इतनी अच्छी नहीं है। मैं भी बहुत सी गलतियां करती थी और बहुत से वर्ड्स गलत बोलती थी, गलत प्रोनाउंसिएशन थी। तब मुझे लगा कि नहीं, बाकायदा तालीम लेना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैंने मेरे उस्ताद ज़िया अलवी साहब से तालीम हासिल की। मैंने उर्दू रस्मुल ख़त यानी अल्फ़ाबेट्स पढ़े बाकायदा, जैसे मैंने कहा कि मैंने तालीम ली, शीन, काफ, ज़ेर, ज़बर सब सीखा, नुक्ता सीखा कि क और क़ में क्या फ़र्क होता है। के होता है क और क्यू होता है क़। तो जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़र्क है, जो कि आम लोगों को मालूम नहीं है, ना गाने वालों को मालूम है, ना सुनने वालों को मालूम है। लेकिन जिन्हें मालूम है, उन्हें बहुत चुभता है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। जैसे किसी भी ज़बान में मैं कहूँ कि अब अंग्रेज़ी में भी अगर जब कोई गलत वर्ड आपके सामने बोलता है, तो आपको लगता है कि ये उन्होंने गलत प्रोनाउंस किया है। इट्स अबाउट एनी लैंग्वेज, इट्स नॉट ओनली अबाउट उर्दू। मैं उर्दू की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं गज़ल के साथ जुड़ना चाहती थी। तो मेरे लिए ख़ास तौर पे ये तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी था। मैं नहीं चाहती थी कि जब मैं इस फ़ील्ड में आऊँ, तो मैं पूरी ऐसी तैयारी के साथ आऊँ कि कोई भी उँगली उठा सके। कोई ये ना कह सके कि आई एम सॉरी टू से दिस, मुझे शायद ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूँकि हमने बदकिस्मती से इस ज़बान को एक मज़हब और एक मुल्क के साथ जोड़ दिया, तो वो बहुत हमारी एक बहुत अनफॉर्च्यूनेट चीज़ हुई हमारे लोगों के साथ। तो मुझे लगता था कोई ये ना कहे कि हिंदू लड़की है, उर्दू गलत
बोल रही है, या हिंदुस्तान की लड़की है तो उर्दू नहीं जानती है। खासतौर पे जब बाहर जाना शुरू हुई, मैं पाकिस्तान और लंदन और यूएसए वगैरह जाना शुरू हुई, तो मैं नहीं चाहती थी कि कहीं कोई भी ये कहे कि गजल तो मतलब आवाज अच्छी है लेकिन तलफ़ुज़ सही नहीं है, या नुआंसेस नहीं जानती हैं। तो ये कुछ शुरू की आदत भी थी कि जिस चीज़ में गए तो फिर बहुत डीपली गए। तो इसलिए फिर मैंने बहुत मेहनत की दीपाली, बहुत मैंने सीखा, और ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कहीं मुझे छोटी उम्र में इस बात का एहसास हो गया था कि मेरी आवाज़ जो है वो गज़ल के लिए बनी है। मैं गाती आज भी सब कुछ हूँ, लेकिन खुशी जो है सबसे ज्यादा, जो मेरे रूह को सुकून जो चीज देती है, वो गजल है। और राधिका, वो आपकी गायकी में दिखता भी है, समझ भी आता है। लोग बहुत हैरान होते हैं कि आप इतनी खूबसूरती से उर्दू का इस्तेमाल कैसे कर पाती हैं, किस कदर मेहनत की है, क्योंकि एज वी ऑल नो, बिना मेहनत किए कुछ मिलता नहीं, एंड देयर इज नो डाउट इट्स नो शॉर्टकट्स दीपाली, नो नो शॉर्टकट। तो यहाँ बगैर पर एक के बगैर फोकस के जिंदगी में आपको कुछ हासिल नहीं कुछ होगा। नहीं होता। इस बात को गांठ बांध लीजिए। बिल्कुल, नो बिल्कुल, शॉर्टकट्स। बिल्कुल। सो यहाँ पर एक गजल बनती है। के हवाले से एक बात और कहना चाहती हूँ, जो मैं पहले भी प्लीज। कह चुकी हूँ। अब क्योंकि ये वर्चुअल कॉन्वर्सेशंस और कॉन्सर्ट्स इतनी हो चुकी हैं, तो कंटेंट तो उतना ही है ले दे के, इसलिए वो कई बातें रिपीट हो जाती हैं। कि मुझे बात खुशी भी होती है, हैरत भी होती है और दुख भी होता है, जब मुझे मेरे ही मुल्क में अपने ही मुल्क की ज़बान बोलने के लिए तारीफ मिलती है। मैं अपनी ज़बान बोल रही हूँ, मैं जापानीज़ नहीं बोल रही, चाइनीज़ नहीं बोल रही, मैं मैंडरिन नहीं बोल रही, मैं फ्रेंच नहीं बोल रही, स्पेनिश नहीं बोल रही। मैं अपनी हिंदुस्तान की ज़ुबान बोल रही हूँ, इसलिए मुझे तारीफ मिलती है कि वाह, आप बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं। तो दुख भी होता है, खुशी भी होती है, हैरत भी होती है कि हमने कहाँ अपनी इस धरोहर को कैसे, कब, क्यों खो दिया। बहुत सो सुंदर, अब बहुत रिवाइवल हो रहा है। आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, वेरी पॉजिटिव पर्सन। सो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये जुबान जो है फिर हमारे मुल्क में उसी तरह वापस आएगी। एंड यू आर डूइंग योर कंट्रीब्यूशन बिग टाइम। सो यहाँ पर एक गजल बनती है, तो जरा कुछ प्लीज गुनगुना दीजिए। कोई खास चीज, कोई किसी की फरमाइश है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं अपनी पसंद से कुछ सुनाती हूँ। आप अभी तो अपनी पसंद से सुनाइए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑडियंस को। एक फरमाइश मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, अगर आप कहें तो मैं वो प्लीज, सुना देती हूँ। प्लीज। प्रीति माथुर जुड़ी है अमेरिका से। जी, वो सुनना, वो बेगम साहिबा की ही गाई हुई एक गजल है, तो जरूर। मैं उससे सिर्फ मतला यानी पहला शेर जो है, और अगर हुआ इरशाद, तो एक शेर और सुना देती हूँ। इरशाद। इस दौर के बहुत अच्छे शायर हुए सुदर्शन फाकिर, जी। मेरे बहुत पसंदीदा शायरों में से एक हैं सुदर्शन फाकिर। उनकी गजल है, इश्क में गैरते जज्बात ने रोने ना दिया, इश्क में गैरते जज्बात ने रोने ना दिया, वरना क्या बात थी, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने ना दिया, इश्क में गैरते। एक शेर और सुना देती हूँ। जरूर, जरूर, इरशाद। वाह वाह। आप कहते थे कि रोने से ना बदले
बदलेंगे नसीब। आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब। क्या बात है। आप कहते थे, आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब। उम्र भर आपकी, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने न दिया। इश्क में गैर थे। बहुत खूब राधिका, बहुत खूब। ना रंजो गम की बहुत फरमाइश आ रही है, मुझे पहले भी आ चुकी है और अब इसमें दोबारा आ रही है, तो साथ में आप वो भी मेरा ख्याल सुनाई दीजिए। फरमाइश इतनी आ रही। जी, वो भी देखिए, आप तो जानती हैं उसके साथ जो किस्सा जुड़ा है कि प्रोग्राम मैंने कंसेप्चुअलाइज किया था, paying tribute to the forgotten artists of yesteryears, all the golden voices who contributed so much to our Hindi film industry. We remember their songs, but unfortunately we've forgotten their names. So कोशिश थी कि अब क्या हुआ ना दीपाली, जब इस फील्ड में कदम रखा तो प्रोग्राम्स और कॉन्सर्ट्स इतने होने लगे कि मुझे नई नई चीजें सोचनी पड़ी। बिल्कुल, क्योंकि वही चीज आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते, तो तब जो रेpertoire है वो बढ़ता गया, उसमें बहुत सी चीजें ऐड होती गई। तो उसी में ये एक प्रोग्राम था जो कि उसमें से 2 गाने जो मेरे साथ साजिंदे थे उस प्रोग्राम में, उन्होंने उसे YouTube पे डाल दिया और वो ये वाली जो गजल है, फिल्मी गजल साहिर लुधियानवी का कलाम, ये तो दिस वेंट वायरल नॉट ओनली ऑन YouTube बट आल्सो ऑन व्हाट्सएप। हो गए हैं, लेकिन आज भी इसी की फरमाइश है और इसके लिए मुझे बड़ी मोहब्बत मिलती है लोगों से, तो मैं सुना। तुम अपना रंजो अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। बहुत सुंदर राधिका, बहुत खूब। अब मैं आपको पीछे फिर ले जाती हूँ कि बीच में 15-1 साल का गैप आया आपकी जिंदगी में जब आपने गायकी छोड़ी। You spent time after your marriage raising your 2 lovely daughters, Ridhima and Devika, and then you decided to come back to the field of music and particularly to the genre of popularizing ghazal गायकी। उस समय किस तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? पर्टिकुलरली मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उस दौर में तब तक बहुत और किस्म के संगीत साथ में जुड़ गए थे, चाहे आप मान के चलिए कि पॉप का जमाना शुरू हुआ, फ्यूजन का जमाना शुरू हुआ, बहुत कुछ बीच में जुड़ता चला गया। सो उस
बीच में आपको गजल गायकी को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी उलझनों का सामना करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, ईदर विच वे? यहाँ मैं एक बात पहले क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि सबैटिकल जरूर था, गैप जरूर आया, मैंने गाना नहीं छोड़ा था दीपाली। मैंने स्टेज के प्रोग्राम्स छोड़े थे, स्टेज शुरू नहीं किया था शादी के बाद, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थी। जाहिर सी बात है कि आपका घर परिवार, आपकी 2 बच्चियां, टू टाइम कंज्यूमिंग एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। आप खुद एक औरत हैं और आप भी शादीशुदा और आपके भी 2 बच्चे हुए, तो आप समझ सकती हैं इस चीज को। तो मैंने गाना नहीं छोड़ा, मैं जिंगल्स गाती थी। जी, मैं संगीत से किसी तरह जुड़े रहना चाहती थी, तो तब भी मैं जिंगल्स गाती थी। और कुछ टेलीफिल्म्स उन दिनों में बहुत बना करती थी, एक ट्रेंड था टेलीफिल्म्स का, सीरियल वगैरह नहीं शुरू हुए थे, तो टेलीफिल्म्स में बहुत गाया। तो जहां भी मुझे मौका मिलता था, लेकिन मैं स्टूडियो की 4 दीवारी में बंद थी, स्टूडियो की 4 दीवारी में बंद रह के गाती थी। और जिंगल सिंगिंग इज प्रीटी ल्यूक्रेटिव, पैसे अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन पहचान कोई नहीं है, बिल्कुल पहचान नहीं है। अब आज हम कितने अच्छे अच्छे जिंगल सुनते हैं, साथ में गुनगुनाते भी हैं, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसे गाया किसने है। तो मैं कभी कभी लोगों को बताती थी मैं जिंगल गाती हूँ, फिर मैं वो वाला जिंगल, वो कहते थे अच्छा कौन सा, तो फिर मैं गा के सुनाती थी वो एवरीडे, वो तो थोड़ा ऑड भी लगता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ये किस तरफ मेरा रुख हो गया, चाहती मैं क्या थी और मैं किस तरफ मुड़ गई, वो पूरी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल गई। और वो कभी कभी आपके हाथ में नहीं होता है दीपाली, वो जैसे मैंने कहा कि मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हूँ, वो डेस्टिनी में कुछ ऐसा हुआ कि वो रुख अपने आप मुड़ गया, जरूर डायरेक्शन अपने आप चेंज हो गई और प्रायोरिटीज चेंज हो गई खुद ब खुद। किसी ने जोर जबरदस्ती या कुछ इस तरह का, मुझे कोई मनाही नहीं थी किसी चीज की, लेकिन वो खुद ब खुद आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, आपका रुख बदल गया जिंदगी का। तो सब कुछ देखते हुए, घर बार बच्चे सब कुछ मैनेज करते हुए, जो मैं थोड़ा सा वक्त निकाल पाती थी, उसमें मैं इतना ही कर सकती थी कि मैं एक स्टूडियो में जाऊं और 1 घंटे में एक रिकॉर्डिंग करूं जिंगल, और कुछ पैसे कमाऊं और वापस आ जाऊं। तो बस उतना ही था, और उससे आगे सोचा ही नहीं था दीपाली। और आपको जानकर हैरत होगी कि मैंने एक स्कूल में भी अप्लाई किया था टू बी अ स्कूल टीचर। सोचिए कि और मैं रिजेक्ट हो गई, क्योंकि स्कूल नया नया खुला था और उन्होंने मुझे कहा यू आर टू क्वालिफाइड फॉर अस, हमें इतनी क्वालिफाइड टीचर नहीं चाहिए, सो वी विल बी एबल टू डू जस्टिस टू योर क्वालिफिकेशन। तो मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है। उसके बाद आपको जानकर हैरत होगी दीपाली कि मैंने 2 कॉलेजेस में अप्लाई किया जॉब के लिए, मैं वहां भी रिजेक्ट हुई। आप यकीन मानिए कि एमए की टॉपर, नेट मैंने 1 गो में क्लियर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और पीएचडी, और मुझे लगता था कि मुझे तो कोई रोक ही नहीं सकता, जितनी क्वालिफिकेशन एक लेक्चरर होने के लिए चाहिए उससे ज्यादा थी मेरे पास, और कॉन्फिडेंस भी था, आवाज भी थी, गाना भी था। लेकिन आप सोचिए मैं रिजेक्ट हुई, मैं दोनों कॉलेजेस में रिजेक्ट हुई, क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं था तब तक कि यहाँ सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, यहाँ पुल्स एंड पुशेस एंड स्प्रिंग्स जो भी होता है वो सब मैटर करती हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था, कोई एहसास नहीं था कि यू हैव टू हैव सम कनेक्शंस एंड ऑल दैट, यू नो। सो मुझसे जो जूनियर थी, मुझसे कम पढ़ी लिखी थी, वो सब सेलेक्ट हुई, मैं रिजेक्ट हुई। बहुत मायूसी मैंने फेस की कि जिंदगी में मेरा बनने क्या वाला है, कि मुझे कॉलेज में जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन अब तकदीर ने इतना बेहतर मेरे लिए सोच रखा था। Destiny had much bigger plans for me, much better plans for me. इसका एहसास नहीं हुआ, ये होता है जिंदगी में। आज कई लोगों को मैं ये बात इस प्रोग्राम के जरिए, प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहती हूँ, कभी आप जिंदगी में रिजेक्ट हो कहीं, या कुछ इस तरह की कोई भी सिचुएशन सामने आए, तो ये सोच लीजिएगा कि ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत बेहतर सोच रखा। बहुत खूबसूरत,
God had better plans for me. He had bigger plans for me. And it's then very inspiring. Sorry? It's very inspiring to hear that from you. And, this is a very strong message that should go out to people. We should not feel dejected. आप लगे रहिए, आप अपनी मेहनत करिए, अपने पर्पस को समझिए और आगे बढ़ते जाइए एंड रास्ते अपने आप बोल रही हूँ कि उस वक्त I definitely felt rejected. ये कुछ सालों बाद मुझे एहसास हुआ, उस एहसास को शेयर कर रही हूँ मैं आज लोगों के साथ. बिल्कुल. ये मुझे बाद में पता चला कि ऊपर वाले ने तो मेरे लिए क्या कुछ सोच रखा था. उसने कहा तुम एक क्लासरूम में 30-35 बच्चों को म्यूजिक पढ़ाने के लिए नहीं बनी हो, तुम तो लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए मैंने तुम्हें बनाया है. और you have to reach out to the world must know you know. So अगर मैं जॉब मेरी जॉब हो जाती दीपाली, तो मैं वहीं महदूद रह जाती. I would have limited myself to the classroom, you know. और बस वहीं बच्चों को पढ़ाती और वही वो जिंदगी एक होती जिस तरह. उसमें कोई बुराई नहीं है, पढ़ाना तो बहुत बड़ा बहुत अच्छा प्रोफेशन है. लेकिन जो मैं आज कर रही हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती, क्योंकि फिर मेरा फोकस शिफ्ट हो जाता. तो जब मैं रिजेक्ट हुई बहुत जगह से, तब कहीं देयर वाज अ वेकअप कॉल. तब लगा कि नहीं, अब ये बहुत हो गया. अब मैं बंद नहीं रहना चाहती थी, ना स्टूडियो की 4 दीवारी में, और कॉलेज से तो रिजेक्ट हो ही चुकी थी. तब बहुत दोस्तों ने बहुत हेल्प की और सबने एनकरेज किया. मैं शांति जी के पास वापस गई और मैंने शांति जी से बात की. 10 साल का गैप आ चुका था और मैंने कहा कि मैं वापस ज्वाइन करना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ. उन्होंने फौरन कहा कि कल से ही आओ. और फिर सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त था मेरे लिए दीपाली, टाइम मैनेजमेंट. आप you have a very encouraging family, there is no doubt about that. लेकिन आप अपने घर को, अपने बच्चों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. बहुत सुंदर. आपकी ड्यूटी है as a wife, as a daughter-in-law, as a mother, absolutely, as a homemaker, as the lady of the house. आप उन ड्यूटीज को पूरी करके टाइम निकालिए. उस टाइम में आप चाहिए संगीत सीखिए, चाहे रियाज कीजिए, चाहे जो मर्जी कीजिए. तो यहाँ पर राधिका छोड़ना पड़ा बहुत सी चीजों को. हमने टाइम मैनेजमेंट इस तरह किया कि जैसे किटीज नहीं, शॉपिंग नहीं, मॉल्स में बेकार में घूमना नहीं, लंचेस नहीं फ्रेंड्स के साथ, नथिंग. सो घर, बच्चे और गाना, बस इन 3 चीजों में मैं डूब गई, दिन रात डूब गई. काम खत्म करके क्लास के लिए जाती थी, फौरन वापस आती थी, आके फिर बच्चे स्कूल से आ गए, उनको देखा, फिर रियाज, फिर एक तबले वाले उस्ताद घर पे आते थे रियाज कराने, और साथ में उर्दू की तालीम शुरू कर दी थी. सो उर्दू पढ़ना और सब बाकी चीजें, बहुत सी चीजों से मैंने जो है अपनी आंखें मैंने बंद कर ली थी. और मैंने वो चीजें I don't know whether I should use the word sacrifice. I don't know if that's a right word or not. But yes, I did that. मैंने बहुत सी चीजें छोड़ दी और बस मैं इसी में डूब गई. और बस क्योंकि the destiny had written something else for you. You know, जैसे अभी रेनू नैयर कह रही हैं कि you were meant to be the queen of ghazal of today. So बहुत अच्छी शायरा है रेनू नैयर जी. चाहिए कि अगर हो सके चैट पे अपना एक अच्छा सा शेर लिखें और उसे आप पढ़ के लोगों को सुनाइएगा. बहुत अच्छी शायरा. नियति ने आपको गजल क्वीन बनाना था, राधिका चोपड़ा दी. शुक्रिया. थैंक यू रेनू, बहुत शुक्रिया. राधिका, आगे बढ़ते हैं, टाइम भाग रहा है और मेरे पास अभी सवाल बहुत लंबे हो जाते हैं. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मुझे आदत है जरा इलेबोरेट. जब मैं कोई किसी चीज का जवाब देती हूँ तो फिर मैं चाहती हूँ कि उसकी तह तक जाऊं. पिछली बार भी आपके साथ शायद यही हुआ था कि शम्मी भाई के भी जवाब बहुत लंबे हो गए थे. तो हम लोग इस फील्ड के लोग हैं ना, हम लोग बात बहुत करते हैं और मुझे आदत है जरा तफसील में जाने की.
और मेरी यही आदत जो है तफसील में जाने की, ये मेरे काम आई है दीपाली, क्योंकि जब मैं, आप जानती हैं, यू बीन देयर फ्रॉम डे वन, जब से मेरी ये जर्नी शुरू हुई, तो जो मैं लोगों को एंगेज करती हूँ बातों में और एनेक्डोट्स और कहानियां और किस्से सुनाती हूँ, वो इसी वजह से है, शायद क्योंकि बातें करने का शौक है और मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत ठीक ठाक कर लेती हूँ। बातों का सिलसिला तो चलता रहे, तुम बोलती रहो और हम सुनते रहे. यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई एम एंजॉयिंग इट एंड हाउ मच द ऑडियंस इज एंजॉयिंग इट. सो वो बिल्कुल वो बात नहीं है. मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेरे पास जो अभी खजाना पड़ा है तुमसे चीजें पूछने का, मेरे जो 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 अभी सवाल हैं उनको मैं लेना चाह रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा तुम्हें नज कर रही थी कि मैं. लेकिन उससे पहले मैं, अब मेरे जहन में चूंकि एक शेर आ गया है तो वो मैं सुनाना चाहती हूँ. जरूर इरशाद. बातों को लेकर ये है कि लोग कहते हैं आप बहुत अच्छी बात करती हैं, बहुत अच्छी बातें करती हैं, तो मिराज फैसलाबादी का एक शेर मुझे बेहद पसंद है दीपाली, कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना. क्या बात है, बहुत सुंदर. गुफ्तगू तूने सिखाई है, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूं तो बातों में असर भी देना. क्या बात है, बहुत सुंदर. अब मैं बोलती हूँ तो उसका असर होता है लोगों पर, तो बड़ी उसका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है. जो जो आर्ट तुम में है राधिका, टू बी एबल टू, कहते हैं अपनी ऑडियंस से मुखातिब होना, रूबरू होना, वो बहुत आर्टिस्ट में होता नहीं है. अनफॉर्चुनेटली वो अपनी कला में ही रह जाते हैं. बट यू हैव बीन ब्लेस्ड with this beautiful talent and art and creativity to be able to connect with the audiences and keep them so. आपने पिछले सवाल में चैलेंजेस की बात की थी, तो जो चैलेंजेस जब आए ना दीपाली, तो उस वक्त मैंने ये देखा कि मेरे पास इस गाने के अलावा और क्या है. तो मुझे इस बात का एहसास था कि मेरे पास ऑडियंसेस को एंगेज करने का, ये जो मेरी गुफ्तगू है, जो मेरी बातचीत है, और जो मेरे पास कहानियां हैं, किस्से हैं, एनेक्डोट्स हैं, जोक्स हैं, और जो थोड़ा एक देयर इज एन एलिमेंट ऑफ नॉटीनेस आल्सो इन मी, तो वो जो मेरी शरारतें हैं, उन सबको मैंने इस्तेमाल किया ताकि मैं, और जितने लोग इस वक्त फील्ड में गा रहे थे, उनसे अपने आप को अलग कैसे बनाया जाए, मुख्तलिफ कैसे बनाया जाए. सो आई हैड टू हैव माय ओन यूनिक डिस्टिंक्टिव स्टाइल. Absolutely, absolutely. और बहुत से कलाकारों को चूंकि सुना था लाइव, जैसे जगजीत सिंह साहब बहुत बातें करते थे लोगों के साथ, जी, बहुत किस्से सुनाते थे, बीच में जोक सुनाते थे. सो वो एंगेज करना ऑडियंस को, उनको इस तरह एंगेज रखना कि वो उठने का सोचे भी ना मतलब प्रोग्राम से उठ के जाने की सोचे भी ना. तो ये जो है बस ये एक हुनर जो ऊपर वाले ने दिया, उसे मैंने इस्तेमाल किया. मैंने राधिका आपकी, I have been very fortunate to see your meteoric journey and your meteoric rise in that journey. And मुझे बेहद खुशी है कि शुरू के उस टाइम पे हमने भी मिलके एक बहुत ही खूबसूरत शो इकट्ठे किया, उसके बाद तो फिर बहुत सारे शोज इकट्ठे किए. And I have seen with you how the audiences love you, respect you and adore you. मतलब मैं ये कहने पे नहीं बनता, ये देखने से ही बनता है, चाहे वो देश है चाहे विदेश है. विदेश से मेरे को ध्यान आता है हमारा जो ट्रिप था पाकिस्तान का, जहां हम लाहौर और कराची गए थे. वहां पर हाउ आई सॉ unceasing admiration and regard and appreciation for you. लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है. So tell me quickly that when you started going internationally, how receptive was the audience to Ghazal Gaiki when you started to take your baby steps going international? Extremely receptive, I would say. बाहर के लोगों में मैंने एक भूख देखी, एक प्यास देखी है, जो कि हमारे यहाँ इतनी नहीं है, क्योंकि शायद यहाँ बहुत मिलता है,
वहाँ बहुत कम मिलता है, सो वो लोग इंतजार करते हैं, मुंतजिर रहते हैं कि कब कोई कलाकार आए, कोई फनकार आए और जो है अपने प्रोग्राम जो है वो पेश करे। वहाँ इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मिलता है दीपाली। और जो मेरी जो जर्नी इंटरनेशनल जो मेरी जर्नी शुरू हुई गाने की, वो नेहरू सेंटर लंदन से शुरू हुई थी। तो वो मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। कोशिश करती हूँ कि बहुत जल्दी से उसको बता दूं, ज्यादा इलेबोरेट ना जाऊं उस पर, हालांकि बात बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। तो जब मुझे पहला मौका मिला दीपाली, तो मुझे नेहरू सेंटर लंदन ने इनवाइट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको जो दिन देंगे वही दिन आपको परफॉर्म करना है, और यहाँ का रूल है कि 1 घंटा ही प्रोग्राम होता है, 7 to 8। और जब आप एक बार यहाँ परफॉर्म करेंगी तो उसके बाद 3 साल आप फिर दोबारा यहाँ नहीं गा सकती। अच्छा, उनका रूल है। या ऐसे जी, ओके, फेयर इनफ। उन्होंने कहा हम आपको कुछ नहीं देंगे, ना हम आपको एयर फेयर देंगे, ना रहने का इंतजाम, कुछ भी नहीं, जस्ट अ वेरी स्मॉल ऑनरेरियम, और आपको विल गिव यू अ गुड स्टेज। बट दे फिक्स्ड अप वेडनेसडे फॉर मी। अप्रैल का महीना था, मुझे याद है, और बुधवार का दिन। अब मुझे कुछ लोग, मैं तो बाहर कभी गाई नहीं थी, तो मुझे लोगों ने कहा कि वेडनेसडे इज अ वेरी बैड डे to sing in London because it's a working day and nobody comes to listen to concerts. It has to be a weekend, you know. So मैंने फौरन वहाँ, दिव्या माथुर थी नेहरू सेंटर में, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं, तो मैंने दिव्या जी को लिखा, मैंने कहा दिव्या जी ऐसे लोग कह रहे हैं वेंसडे। उन्होंने कहा सॉरी, हमारा कैलेंडर फुल है, आपको गाना है वेंसडे को तो आइए, अदरवाइज अगले साल देख लेंगे। अब मैंने सोचा चलिए ठीक है, मैं ऊपर वाले का नाम लेके चली गई, और अंदर से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि मुझे एक वेंसडे दिया गया है। तो 7 बजे उस दिन मैंने हिस्ट्री चेंज कर दी नेहरू सेंटर की। मतलब छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, इस तरह की बातें कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि एक तो ये हुआ कि 7 बजे का प्रोग्राम था, 6:30 बजे हॉल फुल हो गया। कहाँ से लोग आ रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मैं खुद हैरान परेशान हो गई कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे यहाँ कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं। तब तक ये यूट्यूब वगैरह भी कुछ नहीं था दीपाली, तो लोगों ने कहा नहीं कि मुझे यूट्यूब पे सुन रखा था या कुछ। नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टिल देन। आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड, लेकिन 6:30 बजे हॉल फुल। अब 50 लोग बाहर खड़े हैं हॉल पे। सो खैर किसी तरह उन्हें अंदर बुलाया गया। मेरे बड़े अजीज हैं पवन वर्मा साहब, वो डायरेक्टर थे उस वक्त नेहरू सेंटर के, तो उनसे भी पहली मर्तबा वही मुलाकात हुई थी। तो अब वो 50 लोग जो हैं उन्हें आयल में कह दिया गया कि आप लोग खड़े हो जाइए आयल्स में। तो जब मैं स्टेज पर आई, मैं हैरान रह गई देख करके, हॉल पूरा भरा हुआ और 50 लोग खड़े। तो मैंने पवन जी से कहा, मैंने कहा अगर आप इजाजत दें तो मैं इन लोगों को अपने साथ स्टेज पर बिठा लूं। तो उन्होंने कहा वाओ दैट्स अ ग्रेट आइडिया, हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई ये बात। तो वो खैर सबको मैंने स्टेज पर कहा कि आप आए प्लीज और मेरे साथ स्टेज पर बैठ जाइए। तो पूरी स्टेज भर गई। अब 7 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, उन्होंने मुझसे कहा था कि 7 to 8 हमारे यहाँ रूल है। अब 8 बज गए, 8:30 बज गए, 9 बज गए, 9:30 बज गए, मैं देखे जा रही हूँ उनको और लोग वाह वाह किए जा रहे हैं। पीपल आर नॉट रेडी टू गेट अप, पीपल आर नॉट लेटिंग मी गेट अप। और मैं पवन जी को देखे जा रही हूँ और डर भी रही हूँ कि वो को इन्होंने कहा 1 घंटा, अब मुझे इशारा कर रहे हैं कि गाइए 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 गाइए, और मैं गाती जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से 9:30 बजे उन्होंने उठकर लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे, इससे आगे हम बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। ये पहली मर्तबा हुआ है नेहरू सेंटर की हिस्ट्री में कि एक प्रोग्राम 2.5 घंटा चला है। यहाँ आज तक 1 घंटे का ही रूल है और वो फॉलो किया जाता है। क्या और बात है। हुआ है कि हॉल इतना भर गया कि हमें लोगों को स्टेज पर बैठाना पड़ा है। और एक बात और जो बदली कि उन्होंने मुझे कहा था कि अब 3 साल नहीं गा सकती, उसके बाद 10-12 साल मैंने लगातार हर साल नेहरू सेंटर में गाया।
क्या बात है, चेंज कर रहे हैं। उसके बाद हम डायरेक्टर आ गई मोनिका मोहता, वो भी मेरी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी दोस्त हैं, बड़ी अजीज हैं। मोनिका जी ने कहा हम आपके लिए सब रूल्स चेंज कर रहे हैं, आप आएंगी, आप यहाँ हर साल गाएंगी। सो वो खूबसूरत एक्सपीरियंस था। तो जैसा मैंने कहा कि बाहर के लोगों में बहुत कदर करते हैं दीपाली, दिल से कदर करते हैं, और बहुत, चूंकि वहाँ एक डिसिप्लिन लाइफ वो लोग वैसे भी लीड करते हैं, सो दे वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट टाइम, कि टाइम से शुरू होता है, सब आके इत्मीनान से बैठते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी डिसिप्लिन की कमी मुझे लगती है, क्योंकि शायद फ्री के प्रोग्राम्स हैं, मैं हमेशा कहती हूँ दिल्ली में, तो कोई कभी भी आता है, कभी भी जाता है, कभी भी उठ के चला जाता है, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई साथ वाले से बात कर रहा है, बगल में बात कर रहा है। बाहर मुल्कों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, दे आर वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, और वो बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और बस उनकी कदर अफजाही को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। एंड राधिका, मैं आपका लंदन का हादसा सुनते हुए, मतलब मैं बता दूं ऑडियंस को कि मैंने तो राधिका के आसपास लोगों को ऐसे प्यार से उमड़ते हुए देखा है कि खैर मेरे को तो हैरानी नहीं हो रही कि लंदन में क्या क्या कर दिया इन्होंने और क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि आई हैव एक्चुअली सीन दिस हैपनिंग। लोगों को मैं ये बता दूं कि देखते ही बनता है सिर्फ कि जब राधिका परफॉर्म करती हैं और उसके बाद जो लोग राधिका को प्यार और आशीर्वाद देते हैं, इट इज रियली बहुत प्यार। और दीपाली, एक बात यहाँ और बताना चाहती हूँ कि चूंकि जिस जॉनर से मैं जुड़ी हूँ उसमें जाहिर सी बात है कि बहुत यंग लोग तो नहीं आते हैं, मेरी ऑडियंस 50+ ही होती है। कोई किसी दिन कोई यंग लोग आ जाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलिए, जश्न रेख्ता में बहुत यंगस्टर्स होते हैं, लेकिन बट बड़े बुजुर्ग लोग मेरे प्रोग्राम में बहुत होते हैं, और मैंने कई मर्तबा अपने प्रोग्राम्स में बुजुर्गों को रोते हुए देखा है। जब उनकी आंखों से मैं आंसू निकलते हुए देखती हूँ तो मुझे लगता है इससे बड़ा अवार्ड, इससे बड़ा आशीर्वाद किसी कलाकार को नहीं मिल सकता, कि एक बुजुर्ग जब गाना सुन के रो रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। लोगों की इतनी मोहब्बत और इतना प्यार मिला है दीपाली कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। शायद बहुत शोहरत ना मिली हो, बहुत नाम ना कमाया हो, कमर्शियली आई मे नॉट बी अ ह्यूज सक्सेस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात को कहने में, बिल्कुल भी नॉट एट ऑल। आई मीन दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स व्हाट आई, this is again a lot of humility that you have in you that is speaking. नहीं, मतलब वो कमर्शियल लेवल पे जो एक होता है शायद वो नहीं है, लेकिन जितना भी है मेरे लिए बहुत है। मैं शायद इतना भी डिजर्व नहीं करती थी, तो हर वक्त हर पल उसका शुक्राना 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 करती हूँ। बहुत दिया उसने ऊपर वाले ने। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं बोलूंगी कि अल्लाह का करम ये भी है कि आपको हमेशा राकेश जी का साथ मिला रहा, बच्चियों का साथ मिला रहा, और with their unstinting support you've been able to go around the globe and mesmerize your audience. Absolutely. Wouldn't have been possible otherwise. Yes, I want to ask you, Radhika, that ghazal can be a bit of a challenging genre also. मैं ये इसलिए कह रही हूँ that on stage जब आप गजल गायकी में उतरती हैं तो इसमें अदाओं का होना भी बहुत जरूरी है। जो लिरिक्स हैं उनको बहुत खूबसूरती से पेश करने की अदा होनी चाहिए, उनका इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से होता है। साथ ही साथ ऑडियंस के साथ थोड़ा नटखटपन और रूबरू होना भी बहुत जरूरी होता है। रेसिप्रोकेशन वो मैं नेचुरली हूँ थोड़ी सी, तो रेसिप्रोकेशन भी करना बहुत जरूरी होता है। सो हाउ डू यू मेंटेन दिस एलिमेंट ऑफ a lot of respect and dignity when you perform? It's beautiful to see you perform, maintaining your dignity so well. इसमें भी मैं यही कहूंगी कि शायद ऊपर वाले का ही फजलो करम है दीपाली, कि इतनी इज्जत मिलती है, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, और मुश्किल है एक औरत के लिए, बहुत मुश्किल है इस पर्टिकुलर जॉनर को संभाल पाना, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात कही है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं सिर्फ औरतों को देख कर गाऊं, ऑडियंस में मर्द
देखते हैं तो उनकी तरफ भी देखना है, और कोई शेर ऐसा भी हो सकता है जिस शेर का कुछ गलत मतलब भी निकाला जा सकता है शायद। एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी होता है दीपाली, कि आप छेड़खानी भी कर रहे हैं, आप मस्ती भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो ड्रॉइंग दैट लाइन। आपको मालूम होना चाहिए कि इसे क्रॉस करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। आप किस तरह स्टेज पे उठती बैठती हैं, आप किस तरह ड्रेसअप होती हैं, आप किस तरह आपके हाव भाव हैं, आपकी अदायगी जो है, आपकी हैंड मूवमेंट्स हैं या जो भी है, आपकी आंखें हैं, वो एवरीथिंग हैज टू बी, वो उसको इतनी खूबसूरती से आप कीजिए ताकि जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, खुद ब खुद उनके दिल में एक रिस्पेक्ट जो है वो आए। और जैसा मैंने कहा कि सब छेड़खानी करते हुए भी कहीं ना कहीं एक लाइन पता नहीं कब कैसे ड्रॉ कर जाती हूँ, और ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हुआ नहीं मेरे साथ। आप क्या बात, यू नो कि बहुत बहुत इज्जत मिलती है, बहुत प्यार मिलता है। you have been able to maintain your dignity and your grace. यहाँ कहना चाहती हूँ कि कभी कभार ऐसा जरूर हो जाता है कि जैसे किसी ने मैंने इसका एक जिक्र पहले भी किया था, एक मजेदार किस्सा है कि किसी ने आके कुछ अगर इस तरह की कोई बात कह भी दी, तो ये हुनर अब आपको आना चाहिए कि उस बात का आप कैसे रुख बदल दें। बिल्कुल, अगला इंसान ऑफेंड भी ना हो। You are not supposed to offend anybody. Correct. At the end of the day, you are a public property. आप जब स्टेज पे हैं, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो कोई ऑफेंड भी ना हो, और खूबसूरती से, मोहब्बत से उस बात का आप रुख बदल दिए। जैसे मैंने वो इस एक किस्सा सुनाया था कि एक जनाब आए थे मेरे पास और बड़ी प्यार से, बड़ी मोहब्बत से मुझे कहने लगे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा जी कहिए। तो कहने लगे अगले जन्म का वादा लेना है। तो बुजुर्ग थे और अब मैं तो हंस पड़ी। मैंने कहा जी मैंने कहा ऐसा है जनाब के अगले जन्म के लिए ना दरअसल एप्लीकेशंस बहुत आ रखी हैं पहले से, तो मैंने कहा आप भी अप्लाई कर दीजिए और फिर अपनी किस्मत आजमा लीजिए, देखिए पता नहीं अगले जन्म में किसका नंबर लगता है। तो वो थोड़े झेप भी गए और कहने लगे you have a great sense of humor. I said yes, I do. तो मैंने अपनी बात भी कह दी और उनको भी ये रियलाइज करा दिया कि आपकी क्या जगह है, जो भी है। मतलब वो ऑफेंड भी नहीं हुए और मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहने लगे अरे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, कहते हुए चले गए। सो इस तरह के कभी कभार किस्से हो जाते हैं और ये मजेदार किस्से, इन्हें तो मैं फिर बाद में हम लोग याद करके कई साल तक हंसते रहते हैं, मुस्कुराते हैं और याद करते हैं, तो अच्छा लगता है। ठीक है, this is all part and parcel of your professional life. Exactly. जो आपने बात बहुत खूबसूरत की कि अपने आप ही चीजों को हैंडल करना पड़ता है without offending anybody's sensibilities. And it's not only about music, Dipali. किसी भी फील्ड में, you know, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी औरत के साथ भी हो सकता है। तो जैसे मैं कहती हूँ कि उसके हाथ में होता है। आपकी सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होनी चाहिए कि कोई इस तरह की बात कह ही ना पाए, कर ना पाए। लेकिन अगर चलिए किसी ने कह भी दी है तो उसका रुख बदल दीजिए, प्यार से रुख बदल दीजिए, हंस के उस बात को टाल दीजिए और उसका रुख बदल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बहुत पुरानी बात मुझे याद आ गई है कि यू वर सिटिंग एंड सिंगिंग इन अ प्राइवेट महफिल। हम लोग एक किसी के प्राइवेट महफिल में गए हुए थे, यू वर सिंगिंग, और गुलाम अली साहब उस कार्यक्रम में आए और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि वो अपनी आंखें बंद करके मग्न मुग्ध होके राधिका 2 घंटे तुमको सुनते रहे, और फिर जब वो उठे he was so full of praises। तो उन्होंने ये कहा कि
ना जाने क्यों नूरजहां को पाकिस्तान में ढूंढा जाता है, जब हिंदुस्तान की अपनी नूरजहां हमारे यहाँ पर यहीं पे है। और लोग पीपल वर सो मस्ती हैं, बहुत बड़े फनकार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। उन्होंने आपको बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत ब्लेसिंग्स दी, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह। आप थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड थी, बट आई रिमेम्बर दैट ही गेव यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। उसी तरह जगजीत सिंह साहब के साथ भी आपका बहुत करीबी रिश्ता था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यू, फॉर यू ही वॉज योर इंस्पिरेशन। उनके साथ किसी तरह का कोई यूनिक एक्सपीरियंस हो तो यू मस्ट शेयर विद अस। और उसके बाद फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ अब गुनगुनाने का टाइम भी आ गया, लंबा गैप हो गया है, तो कुछ फिर उसके बाद सुनाइएगा भी। उनके साथ जो सबसे यूनिक एक्सपीरियंस था वो मेरी पहली मुलाकात थी। वो लंदन में एक गजल की वर्कशॉप कर रहे थे और मैं वहाँ प्रोग्राम्स के लिए गई हुई थी। तब तक मैं ऑलरेडी फील्ड में आ चुकी थी और मैं गा रही थी, और लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे। उन्होंने शायद कहीं मेरे बारे में सुन रखा था, बट ये नेवर रियली हर्ड मी। तो वहाँ मैं वो अटेंड करने चली गई वर्कशॉप, और वहाँ जब मुझे मिलवाया गया उनसे तो बहुत खुश हुए। कहने लगे, अच्छा आज चलिए बैठिए वर्कशॉप में, देखते हैं कि आप गजल के बारे में कितना जानती हैं। तो मैंने कहा जी। तो मैं पीछे बैठ गई। मेरी आदत है, मैं आई हैव नेवर बीन मैं आगे आकर नहीं बैठ सकती, मैं बहुत पीछे रहती हूँ। आप जानती हैं पर्सनल लाइफ में भी यू नो मी वेरी वेल कि मुझे पीछे रहना पसंद है। मैं बहुत आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। बड़े प्रोग्राम्स में भी जाती हूँ तो पीछे बैठ जाती हूँ, आगे नहीं बैठ सकती। somehow that's a part of my nature। और वहां फिर वो जब उन्होंने गजल की बात शुरू की तो वो जो भी सवाल पूछते थे उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास था। तो सारे जवाब पीछे से ही आ रहे थे। और फिर उन्होंने गजल हमें दी और उन्होंने कहा कि इसे राग दिया बागेश्वरी के, इसमें कुछ कंपोज कीजिए, कौन कर सकता है, कोई कर सकता है? मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा जी मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कीजिए। 5-10 मिनट का वक्त दिया और उसमें मैंने जल्दी से उसे कंपोज किया, और जो कुछ भी मेरे से उस वक्त बन पाया जल्दी से, तो वो गजल गालिब की थी, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो मैंने बागेश्वरी में कंपोज करके उन्हें सुना दी। बस उसके बाद फिर देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर वो समझ गए कि हाँ मतलब कि मेरा क्या मयार है या कितनी नॉलेज है। फौरन उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा आपसे सीखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम बहुत अच्छा गाती हो, सीखने वीखने की अब जरूरत नहीं है, जैसा गा रही हो बस इसे रियाज करो, पॉलिश करो और गाओ। और मैंने कहा कुछ तो आप थोड़ा सा बताइए। उन्होंने कहा बस ऑडियंस को ध्यान में रखकर गाइए, ऑडियंस के लिए ही गाइए, जो ऑडियंस को पसंद है वो गाइए, अपनी चीजें मत गाते जाइए। अगर ऑडियंस आपको लगता है आज बहुत ज्यादा गजल सुनने वाली नहीं है तो कुछ लाइट चीजें सुना दीजिए, कुछ पुराने चाहे फिल्मी गाने भी सुनाने पड़े तो वो भी सुनाइए, पंजाबी सुनाना पड़े पंजाबी सुनाइए, सब कुछ सुनाइए, क्योंकि ऑडियंस खुश होके जाएगी तो वापस आएगी। अगर खुश होके नहीं जाएगी तो फिर वो दोबारा वापस आपको सुनने कभी नहीं आएंगे। तो ये बात जो है उनकी मैंने गांठ बांध ली। और ये भी एक वजह है कि जो मेरा रेpertoire है वो बहुत बहुत बड़ा है। और मैं ऑडियंस देख लेती हूँ दीपाली कि अगर ऐसी जगहों पे भी गई हूँ जहाँ गजल समझते ही नहीं, जैसे नैरोबी वगैरह में या और कोई ऐसी जगह है जहाँ मेरी गुजराती फैन फॉलोइंग बहुत है। अब गुजराती जो है वो म्यूजिक लवर्स हैं लेकिन गजल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं समझते, उर्दू नहीं समझते, तो फिर उन्हें मैं कुछ लाइट किस्म की चीजें सुना देती हूँ। और सब कुछ पिटारे में रखा है, तो बस आई जस्ट सी द पल्स ऑफ द ऑडियंस एंड आई स्टार्ट। पहली गजल में मुझे पता चल जाता है व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी। पहली गजल से मुझे इस बात का इल्म हो जाता है कि आज किस तरह की पब्लिक है, किस तरह की ऑडियंस है, किस तरह का गाना ये लोग सुनेंगे। तो अब उसी पिटारे में से अब आप कुछ निकाल के गुनगुना दीजिए और फिर हम तो बताइए, वरना जो अगर आते हैं तो फिर मैं अपनी कोई एक कॉम्पोजिशन सुना दूंगी। केएल सहगल का कुछ सुना दीजिए, उसकी बहुत फरमाइश आ रही है, पहले भी आई है मुझे और अब भी आ रही है, तो अगर आप कुछ केएल सहगल का सुना दें।
अच्छा, मैं एक कॉम्पोजिशन तो डेफिनेटली अपनी सुनाना चाहूंगी। जरूर इरशाद। सहगल साहब का फिर बिल्कुल आखिर में जब आप कहेंगी प्रोग्राम खत्म करने के लिए, उस वक्त सुना देती हूँ। जरूर। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ दीपाली, कि मैं फीमेल पोइट्स को बहुत गाती हूँ, फीमेल पोइट्स को बहुत पढ़ती हूँ, शायरात को बहुत, और उनके लिए मैंने हमेशा आवाज़ भी उठाई है, उनका मैंने हमेशा जिक्र किया है हर प्रोग्राम में, क्योंकि मुझे लगता है कि फीमेल पोइट्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी, एज कम्पेयर टू मेल पोइट्स, थोड़ी पीछे रह जाती हैं, पता नहीं क्यों। मैंने लॉकडाउन में एक सीरीज भी रिकॉर्ड की है, गजल की कहानी मेरी जुबानी, 6 एपिसोड्स उसके यूट्यूब पर हैं। उसमें मैंने एक पूरा एपिसोड जो है वो शायरात, फीमेल पोइट्स को डेडिकेट किया है। जी। तो मुझे शायरात का कलाम गाना बेहद पसंद है। तो ये एक शायरा है आयशा गाजी, उनकी गजल है, मेरी अपनी कॉम्पोजिशन है। इरशाद। तुम्हारे हुक्म के आगे बगावतें कैसी। क्या बात औरत है ना, औरत कह रही है। है। तुम्हारे हुक्म के आगे बगावतें कैसी, मैं ढूंढती हूँ मोहब्बत में राहतें कैसी। क्या बात है, बहुत सुंदर। मोहब्बत में तो राहतें मिलती नहीं, मोहब्बत में कोई राहत नहीं। तुम्हारे हुक्म के आगे बगावतें कैसी, तुम्हारे हुक्म के आगे बगावतें कैसी, मैं ढूंढती हूँ मोहब्बत में राहतें कैसी, तुम्हारे हुक्म के आगे बगावतें कैसी। इसका बहुत प्यारा शेर है, बहुत खूबसूरत। मैं सोचती हूँ मोहब्बत का जुर्म मेरा है, मैं सोचती हूँ बहुत मोहब्बत सुंदर। का जुर्म मेरा मेरा है। है। मैंने मोहब्बत की है ना, तो जुर्म तो मैंने किया है। मैं सोचती हूँ मोहब्बत का जुर्म मेरा है, वाह वाह। तो अपने जुर्म की उससे शिकायतें कैसी, सुंदर। तो अपने जुर्म की उससे शिकायतें कैसी, मैं ढूंढती हूँ मोहब्बत में राहतें कैसी, तुम्हारे हुक्म के आगे बगावतें कैसी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधिका, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको के एल सहगल साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए गुजारिश करी टू सेलिब्रेट हिज सेंटिनरी ईयर, एंड साथ साथ में फिर आपने और भी बहुत से पुराने जो हमारे नायाब सिंगर्स हैं, चाहे वो नूरजहां हैं, गीता दत्त हैं, सुरैया हैं, मास्टर मदन मोहन हैं, सबको आपने फिर अपने रंग में ढाला। तो ये मेरा ख्याल लोगों का एक बहुत आपके ऊपर शायद प्रेशर भी आने लगा था, पीपल वांटेड टू लिसन टू यू, एंड तो आपने थोड़ा सा अपना रुझान उस तरफ भी रखा। तो मैं ये चाहूंगी कि इसलिए किया दीपाली, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि चूंकि अब मैं इस फील्ड में आ ही चुकी थी, और जब मैंने आगाज किया तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ गजल को लेकर आगे बढ़ूंगी, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन मुझे बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो गया था कि सिर्फ गजल से काम नहीं चलेगा।
I had to increase my repertoire, you know. तो Right. फिर और कुछ ऐसा भी हुआ कि इत्तेफाकन मेरी मुलाकात मेरे बड़े अजीज थे प्राण नेविल साहब, उनसे हो गई। वो अब जी हमारे बीच नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली। मैंने 35 कॉन्सर्ट्स उनके साथ किए और वो इंसाइक्लोपीडिया थे। और क्योंकि हम रिपीट नहीं कर सकते थे तो वो हर बार एक नया टॉपिक लेकर आते थे। तो कहते थे कि चलिए इस बार लेट्स पे ट्रिब्यूट टू मदन मोहन। चलिए मदन मोहन साहब। लेट्स पे ट्रिब्यूट टू के एल सहगल। ओके जी। पंकज मलिक, ओके, गीता दत्त, सुरैया, नूर जहां। मतलब इस तरह 35 प्रोग्राम आप सोचिए। फैज क्या अहमद बात फैज, क्या बात गालिब, बेगम अख्तर। तो इतने उन्होंने प्रोग्राम क्योंकि हमने इकट्ठे प्लान किए, तो उस जी वजह से फिर मुझे तैयारी करनी पड़ती थी, नई चीजें सीखनी पड़ती थी और उनको मास्टर करना पड़ता था। अब मास्टर मदन की चीजें गाना कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल, यू नो, बिल्कुल दे आर सो डिफिकल्ट। और इवन सहगल साहब का मैं समझती हूँ गाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जी का जी गाना गाना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन मैंने कोशिश की, और चूंकि मुझे मिनिस्ट्री से हुक्म भी हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, सो इट वाज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू मी। इट केम एज अ शॉक, एज अ सरप्राइज, बिकॉज मेरा ख्याल है कि मुझसे पहले शायद किसी फीमेल आर्टिस्ट ने केएल सहगल को नहीं गाया था। लेकिन बिल्कुल मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई और मुझे ये हुक्म दिया गया। सो मैंने तैयारी की और जो कुछ भी मुझसे बन पाया मैंने सुनाया। और वो दिन और आज का दिन, सहगल साहब का नाम भी मेरे नाम के साथ पता नहीं जुड़ क्यों गई जुड़ा है। इतने बड़े फनकार को आज लोग मुझसे सुनना चाहते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान या कहीं भी किसी भी मुल्क में, लोग उनके शैदाई हैं, उनके मुरीद हैं, उनके भक्त हैं, और वो सहगल साहब का गाना मुझसे सुनना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो यहाँ पर केएल सहगल साहब का एक गाना बनता है, तो प्लीज आई थिंक अब क्योंकि कार्यक्रम का समय भी होता चला जा रहा है, तो केएल सहगल साहब सुना दीजिए, मदन मोहन साहब सुना दीजिए, नूरजहां सुना दीजिए, सुरैया मन तो कभी भरता ही नहीं है। सो आई लीव इट टू यू। थोड़ा थोड़ा अगर आप सब रंग सुना दें तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। नादिरा कह रही है मलिकाए तरन्नम, मलिकाए गजल हैं आप हिंदुस्तान की, देयर इज नो डाउट शुक्रिया अबाउट। नादिरा, बहुत शुक्रिया नादिरा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है। संगीत हैं वेरी सो वर्सेटाइल एंड टैलेंटेड। बहुत से लोग आप यहाँ पर आपके जो फैंस हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, इंटरनेशनली भी लोग बहुत से जुड़े हुए हैं। राधिका, बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं। शुक्रिया। सो नाउ जस्ट नूरजहां से मैं बहुत इंस्पायर रही हूँ, जम्मू में पली बड़ी, तो बचपन से उन्हें देखा टेलीविजन पर। तो जैसे आपने इतनी फरमाइशें कर दी हैं कि मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या सुनाऊं। तो नूरजहां का जो गाया हुआ पहला गीत वो जी सुनाती हूँ। देखिए मेरी ये भी कोशिश रही है हमेशा दीपाली कि कुछ हटके कुछ अलग चीजें भी लोगों तक पहुंचाऊं, जी जो बिल्कुल। लोगों ने आज तक नहीं सुनी या कम लोगों ने सुनी है। तो ये नूरजहां का गाया हुआ पहला गीत है, सिर्फ मतला सुना रही हूँ क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है। तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा, तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा, तारे हैं मेरे जख्मी जिगर इनमें समा जा, तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा। चलिए अंतरा भी सुना रही हूँ। दिल ढूंढ रहा है, दिल ढूंढ रहा है कि मेरा चांद कहाँ है, छोटी सी झलक दे के मेरी ईद बना जा, छोटी सी झलक दे के मेरी
ईद बना जा, तारे हैं मेरे जख्मी जिगर, इनमें समा जा, तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आज। बहुत खूब राधिका, बहुत खूब। ना कोई accompanying artist, ना कोई साज, and for you to sing like this is truly mesmerizing. I mean, भगवान की आपके ऊपर बहुत बहुत blessings हैं, आशीर्वाद है माँ से। और लोगों की दुआएं बहुत हैं दीपाली, आप जैसे लोगों की दुआएं बहुत हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, और शायद और कुछ नहीं कमाया जिंदगी में, लेकिन प्यार, मोहब्बत और दुआएं इतनी कमाई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब आगे आगे बढ़िए, मतलब रुकना नहीं है आपको, कुछ कुछ सुनाती जाइए। मास्टर मदन की जो मैं बहुत एक मशहूर चीज गाती हूँ, उसका भी सिर्फ मतला सुना रही हूँ जी। यूं न रह कर हमें तरसाइए, यूं न रह कर हमें तरसाइए, आइए आ जाइए आ जाइए, आइए आ जाइए आ जाइए, यूं न रह कर हमें तरसाइए। और बताइए, और किनको सुनना है? मैंने तो आपके सामने बहुत फरमाइशें रख दी हैं। अब आप बस जो आपको पसंद आता जाए, क्योंकि लोगों की तो फरमाइशें पूरी नहीं हो पाएंगी, तो आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। अच्छा, नहीं तो मैं, अगर आप कहें तो, अगर ये प्रोग्राम की आखिरी पेशकश है तो फिर मैं सैगल साहब का जो नगमा है मशहूर, वो थोड़ा नहीं, सा फिर अभी आखिरी तो नहीं है, एक आधा तो अभी और रिक्वेस्ट होगी, उसके बाद आप फिर आखिरी कहिएगा। अच्छा चलिए, वक्त तो बहुत हो चला है। आप कोई, अगर कोई सवाल है जहन में तो वो पूछ लीजिए, जैसे आप कहें। मैं सवाल एक जरूर पूछना चाहूंगी कि जो नई पीढ़ी के गायक हैं, जो नई पीढ़ी के जो गजल गायिका में अपना रुझान रखते हैं या हिंदुस्तानी म्यूजिक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए तो आपका क्या संदेश रहेगा राधिका? आई वांट यू टू give them some sort of a perspective that you think is important for them to know, because you have an inspiring journey, an inspiring story of your own experiences that you can talk about. तो उनके लिए क्या कहेंगे? मैंने पहले भी ये बात कही है, फिर कह रही हूँ दीपाली के, यंगर जनरेशन जो है वो बहुत स्मार्ट है, हमसे बहुत आगे है। टेक्निकली कह लीजिए या टेक्नोलॉजी वाइज कह लीजिए, दे नो सो मच। मुझे लगता है वो हमसे भी कहीं ज्यादा जानते हैं। तो मेरे पास बहुत कुछ नहीं है उनको कहने के लिए। हाँ, जो लोग सीरियसली वाकई पूछना चाहते हैं, तो बस मैं एक ही बात हमेशा कहती हूँ, एक तो क्लासिकल म्यूजिक की तालीम जरूर लीजिए, चाहे थोड़ी लीजिए लेकिन लीजिए जरूर, ताकि आपको सुरों का, बेसिक रागों की नॉलेज हो। उर्दू की तालीम जरूर लीजिए प्लीज, उर्दू सीखे बगैर, किसी उस्ताद की हेल्प लिए बगैर, किसी उस्ताद की मदद लिए बगैर गजल न गाइए, क्योंकि गजल के सिर्फ नुक्तों की बात नहीं है, सिर्फ तलफ़ुज़ की बात नहीं है, और भी बहुत चीजें हैं। कॉमा है जैसे, फॉर इंस्टेंस, मैंने हमेशा बहुत इस बात पे जोर दिया है कि कॉमा की इतनी इम्पोर्टेंस है। जुबान में ही होती है, बोलचाल की जुबान में भी होती है। आखिर अगर कॉमा बना है तो उसका कोई मकसद है, किसी मकसद से कॉमा बना है ना। उर्दू पोइट्री में तो पूरा मतलब ही बदल जाता है, अगर हम एक कॉमा यहाँ से वहां कर दें तो पूरा पूरा शेर का मतलब बदल जाता है। तो ये जो नुआंसेस हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें प्लीज समझिए, इन्हें सीखिए, किसी उस्ताद से गाइडेंस लीजिए। जब भी, आज भी दीपाली, इतना सब गाने के बाद, सीखने के बाद, आज भी जब मैं कोई नई गजल जब मैं इंतखाब करती हूँ, चुनती हूँ गाने के लिए, तो मैं पहले उसे जिया अलवी साहब को फोन पर सुनाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत
हालांकि मैंने उर्दू की किताब से पढ़ी होती है, मुझे उसके नुक्ते वगैरह सब मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ तो मुझे तसल्ली हो जाती है। और वाकई कभी कभार एक आधा कॉमा यहाँ, देखिए क्या है, उर्दू की जो स्क्रिप्ट है ना दीपाली, उसमें कॉमा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे हमारी हिंदी उर्दू में कॉमा है, उर्दू में कॉमा नहीं होता। ओके, उसमें पंक्चुएशन नहीं है, तो इस वजह से दिक्कत आती है, क्योंकि कॉमा है ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ कॉमा है। वो तभी पता चलेगा जब आप गजल को सही मायनों से समझेंगे। जो मैंने हमेशा इस मिस्टेक की बात की है जो सारी दुनिया करती है, और शुरू में मैं भी करती थी, जो गालिब का कलाम है, नुक्ताची है ना, तो अब सब उसको पढ़ते हैं, नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने, है ना, गमे दिल के बाद कौमा लगाते हैं। तो सुरैया जी ने भी कहा नुक्ताची है गमे दिल, यहाँ छोड़ती हैं वो गलत है। मैं भी वहीं छोड़ती थी, क्योंकि मैं हूबहू वैसा गाती थी जो उन्होंने गाया है। जब ये मुझे किसी उस्ताद ने बताया और मुझे मालूम हुआ कि दरअसल नुक्ताची है के बाद कॉमा लगना चाहिए, क्योंकि जो महबूब है वो नुक्ताची है, वो क्रिटिक है, वो क्रिटिसाइज करता है। नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने। देखिए इसकी पूरी सेंस बदल गई कि वो नुक्ताची है, इसलिए गमे दिल उसको सुनाए ना बने। मैं गमे दिल उसको कैसे सुनाऊं, क्योंकि वो तो क्रिटिक है, वो तो क्रिटिसाइज करता है महबूब, वो तो नुक्ताची है, नुक्ताचीनी करता है। नुक्ताची है, यहाँ छोड़िए, नुक्ताची है गमे दिल, यहाँ नहीं छोड़ना। तो ये जो है जो मैं कह रही हूँ कि छोटी छोटी बातें जो है, बारीकियां जो है, नुआंसेस, जुबान तलफ्फुज पे जोर दीजिए, अच्छे उस्तादों का कलाम पढ़िए, अच्छे उस्तादों को सुनिए, सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी सीख मैं इन बच्चों को देना चाहती हूँ वो ये है कि आप कहीं भी पहुंच जाएं, कुछ भी कर लें, जमीन से जुड़े रहिए प्लीज। इस जमीन की ताकत को समझिए, जमीन की ताकत को पहचानिए। जमीन के साथ रहना बहुत जरूरी है दीपाली। 1 मिनट लगता है इंसान को हवाओं में उड़ने लगता है, जरा सी कुछ फेम, थोड़ा सा भी कुछ मिला तो एकदम हवा में उड़ने, और हवा में उड़ने की फिर क्या होता है कि फिर आप वापस आने के काबिल नहीं रहते। और जब उस बुलंदी पर भी पहुंच जाते हैं, वहां तन्हाई होती है, वहां आप तन्हा हो जाते हैं। एक शायर ने कहा, इस बुलंदी पे बहुत तन्हा हूं, काश मैं सबके बराबर होता। फिर आप वापस आना चाहते हैं, लेकिन इट्स टू लेट, आप वापस आ नहीं पाते, तो आप कहीं, यू आर हैंगिंग समवेयर इन बिटवीन। जी बिल्कुल। तो आप कहीं भी पहुंचे, अपने पैर जमीन पे रखिए और आंखें आसमान पर रखिए, आपको रोक नहीं पाएगा। जो जमीन रहेगा वो उसे कभी जिंदगी में कोई रोक ही नहीं पाएगा। बहुत सुंदर। और सबसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी जिंदगी का मंत्रा है, बच्चों से भी यही कहना चाहती हूँ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इतना जरूरी है जिंदगी में। आप जिस चीज की वैल्यू करेंगे वो चीज आपकी वैल्यू करेगी। आप टाइम की वैल्यू करेंगे, वक्त आपकी वैल्यू करेगा। आप पैसे की वैल्यू करेंगे, पैसा आपकी वैल्यू करेगा। आप रिश्तों की वैल्यू करेंगे, रिश्ते आपकी वैल्यू करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत रेसिप्रोकल। बिल्कुल। डिसिप्लिन रखिए, संगीत सीखिए, उर्दू पढ़िए, और फिर गजल के फील्ड में आइए और डिसिप्लिन होके आइए, और वक्त की कद्र कीजिए, बड़ों की कद्र कीजिए, अच्छे उस्तादों का गाना सुनिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। और मैंने एक और चीज नोटिस की है कि यंगस्टर्स पूछते तो हैं कि मैम कुछ बताइए कोई गलती, लेकिन जैसे ही गलती बताओ तो बुरा मान जाते हैं। तो हम आज भी बुरा नहीं मानते। मैं आज भी सीखने को तैयार हूँ दीपाली, आज भी। इसमें जरा सा इस लफ्ज को इस तरह कह दीजिए, मैं फौरन नोट कर लेती हूँ और थैंक यू कहती हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने आपकी वजह से मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ। तो
सुंदर. Be open to suggestions and criticism. Be open, because bouquets and brickbats come together. So be बहुत ready सुंदर. for both. Be ready for both. बस ये, अगर कोई है यंगस्टर्स इस वक्त साथ जुड़े हुए जो मेरी इन बातों से कुछ सीखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. और रक कालरा कह रहे हैं, दीपाली जी टेक्निकल नॉलेज के लिए एक अलग से लाइव रखिएगा. He is obviously very enchanted with all your inputs and your informations and your understandings. There is no doubt about it. जरूर कहिए कि वो तो जब नया सेशन, अगला सेशन होगा तब होगा. तब तक प्लीज मेरी जो लॉकडाउन सीरीज है गजल की कहानी मेरी जुबानी, उसे 6 एपिसोड्स हैं, वो जरूर देख लीजिए. तो आपको गजल के बारे में मैंने इतनी तफसील से बात की है कि शायद ही कोई मौजू है, शायद ही कोई ऐसा मुद्दा है जो मैंने उसमें नहीं उठाया. पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है फ्रॉम स्क्रैच कि गजल दरअसल है क्या, और गजल के मायने क्या हैं, और उसकी टेक्निकलिटीज क्या हैं, वगैरह वगैरह. So Radhika, this brings us to the end of the session. अब जाने से पहले केएल सहगल सुना दीजिए. आपकी याद आती रही, उसकी फरमाइश आई हुई है. मुझसे पहली सी मोहब्बत की फरमाइश आई, बहुत सी फरमाइशें. सो अब कुछ भी जो आपको समझ आए, केएल सहगल साहब के साथ साथ 2-3 और नगमे सुना दीजिए और फिर हम कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे. ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मुझे लगता है. तो आपकी याद आती रही रात भर मेरी बहुत पसंदीदा गजलों में से एक है. मुहम्मद का कलाम है, तो उसका मतला और एक शेर सुना देती हूँ, और एक फिर सहगल साहब की चीज सुना. सॉरी, बस एक सेकेंड, मुझे जरा ये आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, दर्द की शम्मा जलती रही रात भर, दर्द की शम्मा जलती रही, गम की लौ थर थराती रही रात भर, आपकी याद आती रही. बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. बहुत बहुत शुक्रिया. एक बार फिर आपका भी बहुत शुक्रिया दीपाली. आपने हमेशा बहुत मोहब्बत दी है, बहुत प्यार दिया है, और इस काबिल समझा, अपने इस प्लेटफॉर्म के काबिल आपने मुझे समझा. जर्रा नवाजी, इस कदर अफजाई, शुक्रिया. चलिए सहगल साहब की एक चीज सुना देती हूँ, और आखिर में एक शेर जरूर कहना चाहती हूँ दीपाली, जो मेरी जिंदगी का निचोड़ है. बहुत बहुत सी जिंदगियों का निचोड़ होना चाहिए, और है. इस शेर को हमेशा सामने रखकर आगे बढ़ी हूँ, इसलिए कभी ऊपर वाले के फजलो करम से कोई दिक्कतें नहीं आती, कोई मुश्किलें नहीं आती, कोई फ्रस्ट्रेशंस नहीं आती. खुश हूँ, कंटेंटेड हूँ, जितना दिया है उसने, ऊपर वाले ने. मेरा ख्याल है मैं शायद मेरी हैसियत से बहुत ज्यादा दे दिया, मैं शायद इस पे काबिल भी नहीं थी. तो ये निदा फाजली साहब का बड़ा सिंपल सा, बहुत सादा सा शेर है.
कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। क्या बात, बहुत सुंदर। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। क्या बात, बहुत बस इस सुंदर। शेर को अगर आप अपना मंत्रा बना लें और अपने सामने रखें जिंदगी में, तो बहुत सुकून मिलता है। अपने से नीचे वालों को देखें, जिनके पास आपसे बहुत कम है उन्हें देखें। ऐसा ऐसा टैलेंट हिंदुस्तान में भरा पड़ा है दीपाली, कि मैं आपको क्या बताऊं, कभी कभी मैं खुद सुनकर शॉक रह जाती हूँ। अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो कभी कुछ सुनने को मिल जाता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसा कैसा टैलेंट कहाँ कहाँ हिंदुस्तान में पड़ा है या रखा है, कोई जानता नहीं पहचानता नहीं। तो उस हिसाब से मुझे मालिक ने ये जो पहचान दी है और नाम दिया है, शोहरत दी है, लोगों की मोहब्बत प्यार दिया है, इसके लिए तहे दिल से उसकी शुक्रगुजार हूँ। बाकी जैसा कहा कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। बहुत गहरी बात राधिका, बहुत बहुत उम्दा और बहुत गहरी बात। एंड ये छोटी सी बात नहीं, ये बहुत गहरी बात है समझने के लिए, और सारी जिंदगी का इसमें निचोड़ निकल के आता है। बहुत खूबसूरत। जी, और इसको अगर आप सामने रखेंगे इस शेर को, तो मैंने कहा जैसे कि कभी जी, आपको दुख कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल कोई बिल्कुल बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी जिंदगी में, अगर इस शेर को बिल्कुल। हमेशा अपने सामने रखेंगे। बहुत सुंदर। चलिए आखिर में सैगल साहब का गाया हुआ, ये नज्म है दरअसल, सैगल साहब की गाई हुई नज्म, बड़ी मशहूर, जो हमेशा लोग मुझसे सुनना चाहते हैं, वो थोड़ी सी सुना रहे। है कातिब तकदीर, मुझे इतना बता दे, है कातिब तकदीर, मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है कातिब तकदीर, मुझे इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। औरों को खुशी, मुझको फकत दर्द और रंजो गम, दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। हिस्से में सबके आई है, हिस्से में सबके आई है, रंगीन बहारें, बदबख्तियां लेकिन मुझे शीशे में उतारे, पीते हैं पीते हैं लोग रोज़ो शब मसरतों की, मैं हूँ कि सदा खूने जिगर मैंने पिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। क्या बात है राधिका, बहुत खूब। मेरा तो मन नहीं कर रहा कि मैं कार्यक्रम को, इस सेशन को खत्म होने दूं। मैं ऑडियंस से माफी चाहूंगी, इतने सारे इन्होंने सब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इतने कमेंट्स भेज रहे हैं, इतनी तारीफें भेज रहे हैं कि मैं सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ, बट सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि सबको तहे दिल से शुक्रिया। और राधिका, आई एम so happy that you were able to take out time and be part of this session. And I can only pray for you that आप इसे बहुत tomorrow, दिन से प्लान कर रही थी दीपाली, लेकिन देखिए सब कुछ, जैसे मैंने कहा कि जब सब कुछ डेस्टिन्ड है, और ये आज ही के खूबसूरत दिन पे होना था इसे, जब हम बिल्कुल बेगम साहिबा का 106 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज के बिल्कुल इस खूबसूरत दिन पर इसे होना था, सो हो गया। बिल्कुल
Bilkul. And I only pray, Radhika, that your music goes down the generations and remain in perpetuity as a piece of art, which penetrates through our ears and goes straight to our heart, to our mind, and to our soul. और इसी Thank को you. मैं मद्देनजर रखते हुए दो लाइनें कहूंगी कि आने वाली नस्लें तुम पर फक्र करेंगी राधिका, जब भी वो सुकून की तलाश में सुनेंगे तुम्हारा नगमा. बहुत शुक्रिया. Thank you. I'm overwhelmed. May you always remain in the hearts and minds of all your fans, your listeners, and your admirers, and Thank you. mesmerizing. सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी से बस यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि हो सके तो दुआओं में याद रखिएगा. शुक्रिया. Thank you so much. And Surya Prabha, Haji Malang, Lalit Sharma, Renu Pukhalji, Devinder Singh Lama, Preeti Mathur, Ruxana, Surya says too good, beautiful singing, Asrar, Shruti, Rekha, Saroj Dhingra. बहुत मुश्किल है, मेरा ख्याल आपको ये लाइव सेशन देखना पड़ेगा और लोगों का आपको तभी पता चल पाएगा और उनको आप जवाब दे पाएंगी. So thank you so much, Radhika. It was a wonderful session. God bless you, and I hope to see you soon. Thank you. Bye bye. Bye. So, friends, yet another very, very enlightening and exciting and mesmerized evening by none other than the Ghazal Queen of India, Radhika Chopra. So, जल्द फिर से मुलाकात होगी किसी ऐसी ही बहुत उम्दा शख्सियत के साथ with some other influential personality. और जाने से पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े रहे. And I will request you to keep following me and Facebook पे और Instagram और YouTube में log in कीजिए और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. और जो आपके कार्यक्रम पहले मिस हो चुके हों या आज आप पूरा ना देख पाए हों, प्लीज डू फॉलो एंड डू वॉच my sessions. So look forward to seeing you very soon with yet another very interesting session of Sharp Conversation. Until then, bye-bye and thank you.